Hi guys, welcome back. We are back. Crick Safari is back. I am Asim. Welcome back to the long-awaited episode of Crick Safari. It was a long hiatus for us, but we are back. We'll be more regular. So as you said, this is Asim. I am Siddharth, and welcome back to Crick Safari. But Siddharth, fortunately, unfortunately, last महीने कुछ हुआ भी नहीं था था. हाँ, that's true. That's true. Gave us a breather as well to decide on the topics that we would be. So हमने इस एपिसोड का एक टाइटल रखा है वेरी कैची दैट बल्ला और बंदूक एक साथ नहीं चलेंगे. So that's why we've got a small banduk and we have a banduk also. What we are driving at is that should we actually be playing the Asia Cup, considering what all has happened post Pahalgam, the short war, Operation Sindoor, exactly. But before that, a quick recap on the things that have happened in the last few. Asim, I don't know whether you realize this or not, but the tour of England for India, not the Indian men's team, right? The women's team and the under-19 team has been a landmark one. Yes. The under-19 team, they drew the test series, they won the ODI series. Yes. The women's team won an ODI series for the first time in their history in England. And of course, you know what happened with the men's team. So what you are trying to say is कि हमने actually में 3 गुना लगान वसूल करा. हाँ, that's true. That's a nice way to put it. 3 गुना लगान ले हम लोगों ने वसूल करा. हर level पे ले लिया. No. So just to that's a very good update to all our fans and also Siddharth जो test series 2-2 से draw करी. And I think बहुत से लोग कहते हैं it's not less than a win. Yes, क्योंकि हमने last series 2007 में जीती. तुम नहीं कहते हो, पर हम तो कहते हैं. राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी के अंदर. Yes, 2007. It's been 18 years, but still we were close. But hats off to the young guys. I mean, hats off. I mean, our last episode where we did a prediction, I think we realistically मैं बोलना चाहूँगा 2-all, but realistically 3-1 with one rain off. 2-all. 3-1 one rained off with one out of 4-2. Optimistically 2-all बोलता, but realistically 3-1 with one rained off. Optimistically देखो मैं तो ये बोलता हूँ a good show by the young team. Absolutely. I think more than anything, they surprised all of us. Nobody thought they would give them such a fight. I mean, considering England, this is the best English side that they could put on the ground. Jofra Archer, Atkinson, everybody was playing. And all the young players from under-19 team. Exactly. Which are Harry Brook in full flow, Harry Jamie Brook, Smith, Ollie Pope, Brockley, Crawley, and Duckett, of course. Duckett, for me, Duckett right now is the best batsman. And then another Ben Stokes. What a he's just like talismanic. Just like Virat Kohli, who gives everything, but absolutely. But we should also not take away the benefits from, because we are talking of guns, from DSP Siraj. Oh, lion-hearted DSP Siraj. And a very, very, very small mention to Jasprit Bumrah, with whom, we expected more. When you're playing for your country, when everything is on the line, I think उतर जाना चाहिए तक मैदान में. वही ना सिद्धार्थ, वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, बट there are certain players जो दिन रात क्रिकेट खेल रहे हैं. There are certain players जो चूजी क्रिकेट खेल रहे हैं, and I think Gautam Gambhir is trying to bring in more discipline. Absolutely. More discipline into the culture. जो काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा है, काफी लोगों को और in the earlier days जब आप टूर करते थे, अब तो ये लोग फर्स्ट क्लास गेम इतने खेलते ही नहीं है वहाँ पे. पहले वो कितने फर्स्ट क्लास गेम्स खेलते थे, काउंटी साइड, ऑस्ट्रेलिया आ जाते थे, स्टेट साइड और प्राइम मिनिस्टर्स 11 और क्या क्या, फिर वो 3, 4, 5 टेस्ट मैचेस खेलते थे. यहाँ पे तब ये कुछ इंटर स्क्वाड मैचेस होते हैं, वैसे भी वो पता नहीं क्या उनसे मैचेस होते हैं. तो सिद्धार्थ, व्हाट टू से, हमें एशिया कप में जाना चाहिए कि नहीं? एज अ टाइटल says, and it is coming from one of the important proverbs या verbs जो one of the great personalities ने कहा था कि खून और नदी एक साथ नहीं बिल्कुल बहेंगे. और हमने तो बोला कि बल्ला और बंदूक भी एक साथ नहीं चलना चाहिए. बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए. तो आपका लेट्स स्टार्ट कि एशिया कप, सो वी विल हैव टू पर्सपेक्टिव, वन इज फॉर, वन इज अगेंस्ट. देयर आर सर्टेन क्रिकेटर्स हु आर सेइंग डोंट ब्रिंग स्पोर्ट्स इनटू इट. देयर आर सर्टेन क्रिकेटर्स हु आर सेइंग वी शुड absolutely not participate. So let's start with the first version. See, I think अगर आपको किसी कंट्री को आइसोलेट करना है, which is what India has been trying to do politically, isolate Pakistan. I think the best way to do it is isolate them
sportingly as well. And there is right now पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट चलता है. एक जमाने में स्क्वॉश, हॉकी, स्नूकर, पता नहीं क्या-क्या थे. हॉकी का भी कोई टूर्नामेंट इंडिया में हुआ था, उसमें पाकिस्तान आई थी क्या? अभी हो रहा है, जो एशिया कप हो रहा है, हाँ. सिक्योरिटी वजह से पाकिस्तान नहीं आई. गवर्नमेंट ने मना कर दिया. So this is a stand taken up by Pakistan. Yes, एशिया कप से मना कर दिया. बट हैविंग सेड दैट, जो आपने हाईलाइट किया था, आई थिंक जूनियर वर्ल्ड कप में अब टीम आएगी उनकी. ओके. तो उनका भी मिक्स स्टैंड है. सो अभी काफी कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए आइडियली. Both the countries exactly don't know what to do, but my personal opinion is that Asia Cup wasn't such a big tournament जो हमें, I mean, डेस्परेट होके, आई मीन जसप्रीत बुमराह जैसे सारे प्लेयर उठ के आ रहे हैं खेलने के लिए. आई मीन 5th टेस्ट तो खेला नहीं गया उनसे, बट एशिया कप इन दुबई खेलने पहुंच गए. दैट इज वर्कलोड मैनेजमेंट. 4 ओवर के खिलाड़ी हैं सब सीधा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम इस टूर्नामेंट को स्किप कर सकते थे. बट लेट अस गो इन डिटेल से बात. तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें स्किप करना चाहिए, एंड बिकॉज जो आई थिंक इस साल हुआ है आफ्टर पहलगाम, आफ्टर इंडिया स्ट्राइक बैक एट सिंदूर ऑपरेशन, उसके बाद दोनों कंट्रीज में एक बहुत ज्यादा राइवलरी की स्पिरिट आ गई है. whether it is politics, whether it is general public. राइवलरी तो आई वुड से कि एक जो आप इंडियन पाकिस्तान प्लेयर से पूछो, वो हमेशा ये बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच का प्रेशर ही. एंड जस्ट टू टेल एवरीबॉडी कि अभी वर्ल्ड कप लेजेंड्स भी हुआ था एक, उसमें भी इंडिया ने 2 मैचेस. अदरवाइज वो टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका ने जीता है, वरना इंडिया जीत जाती वो टूर्नामेंट. द वे युवराज सिंह पठान ब्रदर्स वर प्लेइंग, और उसमें आपने 2 मैचेस पाकिस्तान के साथ हुए लीग में सेमीफाइनल, आपने नहीं खेला, स्टैंड लिया. तो वो स्टैंड एक तरफ, तो लेट अस सी, तो वही हम लोग बात करते हैं. एक्चुअली एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि एक जो लेजेंड्स का क्रिकेट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आप स्किप कर सकते हो, और एक तरफ हम कह रहे हैं, बीसीसीआई कह रही है कि नहीं यार आप जाओ खेलो. ये नहीं समझ में आया. आई थिंक अब बीसीसीआई के हाथों से भी मामला निकल चुका है, बिकॉज अब आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें खेल सकते हैं, बायलैटरल नहीं होंगे. ओके, लेट्स गो अ स्टेप, थोड़ा पीछे चलते हैं. ऐसे इंस्टेंसेस या ऐसे डिसीजंस और कैसी कंट्रीज ने पहले ले चुके हैं. So let us discuss that, because that will give our audience and our cricket lovers a very good perspective कि ये इंडिया है जो ये स्टेप अभी भी ले रहा है, बट पहले पास्ट में. So let's go to the 1999 World Cup. In fact, before 99, go to the 1996 World Cup. Okay. Because of the LTTE threat. Yes. Australia did not go to Sri Lanka. Yes, I remember. They did not go to Sri Lanka to play the match. I remember. वो वही हुआ था, sort of. It was awarded to Sri Lanka. Right. तो 96 में. So 96 से ऑस्ट्रेलिया took a stand कि वहाँ पे क्योंकि टेररिस्ट का कुछ अटैक है, तो they didn't went. Yes. And yet Australia and Sri Lanka were in the finals. Exactly. Coincidentally. Which happened at Lahore. And it was a lot of, you know, I mean just a quick, I mean जो final था ना, इतना मजेदार मसालेदार था ना, because उसके पहले मुतैया मुरथल और डैरिल हेयर का नो बॉल वाला इंसिडेंट हुआ था. फिर ये बॉयकॉट हुआ. तो जो फाइनल हुआ था, एक तरफ था अर्जुना रानातुंगा, वो भी एक कैरेक्टर था. So what was very feisty? See, I remember that final because of Arvinder De Silva, the knocky play. Oh yes, a century in the finals. Otherwise, so Australia took a stand in 96. Yes. Then let's go to 99. 99 World Cup में क्या हुआ सिद्धार्थ? Again Australia took a stand कि हम कीनिया से नहीं खेलेंगे. नहीं, तो I remember कि कीनिया went. It was 99 or it was 2003? So it was 2000. It was 2000. So 99 से 99 तो इंग्लैंड में था सर. तो सब लोग जाते हैं. सब खेलते हैं. तो 2003 में आते हैं. 2003 World Cup semi-finals Kenya went. Yes. Because one, Australia didn't play. I think Australia and New Zealand didn't wanted to go to Zimbabwe. So उनके जो points मिल गए थे, उससे वो semi-finals में आ गए. तो न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे नहीं गई. Yes. ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे नहीं गए. हाँ. But वहाँ पे क्या? Because of terrorist attack? No. I think it was more about racism? Not racism. I think more anti-democratic forces को. क्योंकि जिम्बाब्वे में वो मुगाबे का anti-politics चल रहा था उस टाइम. God knows. I think it must be something on that. But I remember कीनिया नहीं गए थे ये लोग. कीनिया नहीं गए थे ये लोग खेलने. और काफी टाइम तक हमने ये देखा था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में नहीं ट्रैवल करा. Yes. काफी टाइम तक. In fact, अगर if you jump to right now, the stand Australia has taken against Afghanistan कि bilaterals अफगानिस्तान के साथ नहीं खेले. And why is that, Siddharth? क्यों अफगानिस्तान? I think because Afghanistan has stopped promoting their women's team.
and Australia is Because of more the कि भैया कि discrimination you have to against be women. sex discrimination कर रहे हैं against women. And that's why they have taken a stand not to play Afghanistan. Yeah, in fact, Australia also recently hosted an exiled Afghan women's team. Yes. Because a lot of them are settled in Australia, Yes, the yes, former players. yes. Because जब वो before the Taliban came in, I think some played the Big Bash and कुछ इधर उधर खेले. So वो उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया ने भी ये स्टैंड लिया और Yes. अभी तक लेते आ रहे हैं. अभी तक ले रहे हैं. नाउ लेट अस कम टू अभी लेटेस्ट वर्ल्ड कप कौन सा हुआ था 2000 जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 23 चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था. पाकिस्तान में था. वेल हुआ पाकिस्तान में था, खेला गया था यूएई में. तो एग्जैक्टली तो चैंपियंस ट्रॉफी में एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड. अगेन बाइकआउट तो किया था इंडिया नहीं बट एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड और वो पहलगाम से पहले था आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी. हाँ पहलगाम अटैक से पहले था. एब्सोल्युटली और चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया पाकिस्तान का हुआ था जिसमें विराट ने सेंचुरी मारी थी आई थिंक 100. हाँ बट वो दुबई में हुआ था. वो दुबई में हुआ था. आपने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, एक कॉम्प्रोमाइज रीच किया गया था. फिर पहले जमाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था. तो फिर बंदूक चली दोनों तरफ से. हाँ मिसाइलें चली दोनों तरफ से. बिल्कुल चली. ब्रह्मोस चला. एंड तो अब BCCI and ICC as cricket governing bodies. Now let us come to the point कि where cricketers like हमारे दादा हैं सौरव गांगुली वो कह रहे हैं कि don't bring sports in these things, let the cricket play as it should be. नहीं बट अगर आप देखो कि चीज़ों को ना ग्रेजुअली लेना चाहिए. मुझे याद है 99 में जब कारगिल हो रहा था और उसमें मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था और इंडिया इंग्लैंड का मैच इंग्लैंड में हो रहा था. Okay. काफी टेंशन थी, हर जगह टेंशन थी. एंड उसके बाद आई थिंक हम लोग करीब 4-5 साल तक कोई लिटरली कोई क्रिकेटिंग रिलेशंस थे ही नहीं पाकिस्तान के साथ टिल वी वेंट इन 2004 फॉर दैट बायलैटरल सीरीज. राइट. तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट को कंटिन्यू रखना है बट सिद्धार्थ अगर यही ICC टूर्नामेंट होता तो क्या व्यू होता आपका. आप कह रहे हो कि एशिया कप छोटा कप है बट क्रिकेट तो क्रिकेट है, स्पोर्ट तो स्पोर्ट है. देखिए इट इज मोर अबाउट सिंबलिज्म. आपको एक मैसेजिंग करना है और आप अगर आपको पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली या थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली भी हर्ट करना है, एशिया कप में आप नहीं खेलो, सारे स्पॉन्सर वो तो ICC BCC हाँ वो तो ICC को भी पता है. ACC के अंदर आता है. वो ICC के परव्यू में नहीं आता एशिया कप. किसके अंदर आता है? ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल. बट अल्टीमेटली तो ICC के नहीं बट इसमें ICC इंटरवीन नहीं करता है अपेरेंटली. जैसा गेम का जो सेटअप है, ये जो टूर्नामेंट है ये ACC ऑर्गेनाइज करता है. तो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल. तो अभी एशिया कप में टीम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से? वो एक्चुअली आई एम नॉट वेरी वेल अपडेटेड बट ऑब्वियसली द यूजुअल सस्पेक्ट्स तो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, UAE and I think Oman. Hong Kong and Oman. Oman, yeah. These are the two additional sides which these are the 8 runs. चार के I think ये group बनेंगे. तो Hong Kong, Oman are playing in the Asia Cup. Yes. But then again the topic comes कि अगर हम लोग ये एशिया कप नहीं खेलते, मान लो हम लोग ये स्टैंड लेते कि बल्ला और बंदूक एक साथ नहीं चलेगा और हम लोग ये एशिया कप में नहीं जा रहे, नहीं क्रिकेट खेलने जा रहे, इससे आपको क्या लगता है कुछ मैसेज जाता है? क्योंकि फिर अगले साल आपका 2020 वर्ल्ड कप इंडिया में है तो फिर पाकिस्तान आएगा कि नहीं 2020 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया? ना हॉकी टीम नहीं आई ना उनकी, अभी एशिया कप हुआ नहीं, था. but that's an ICC tournament. बट देने के आप आज की तारीख में पाकिस्तान का जो वजूद रहा है वो वसीम वकार वाली टीम का नहीं रहा है कि अगर वो आएंगे तो दे आर शॉट विनर्स. आई नो सिद्धार्थ बट आईसीसी का देखो अलग ही है कि आईसीसी इज मोर लाइक द ओलंपिक्स. क्योंकि जो BCCI का स्टेटमेंट है वो ये है कि ICC टूर्नामेंट्स में ये सब खेलेंगे, नॉन ICC टूर्नामेंट्स में दे विल पिक एंड चूज. और इंडिया के लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये टूर्नामेंट इसलिए खेलना भी था, आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस इज बिकॉज जो लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में T20 होने वाला है. राइट. ठीक है. फर्स्ट टाइम क्रिकेट इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स एंड ओनली आई थिंक 6 or 8 टीम्स आर गोइंग टू प्ले. अच्छा तो वो काउंटिंग और मार्क्स और जो रैंकिंग्स रैंकिंग होगा, आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड. यस दैट हैज स्टार्टेड. Okay. तो एक कट ऑफ है इनफैक्ट जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी वो काफी नीचे चल रहा है. तो दे आर इन डेंजर ऑफ नॉट इवन क्वालिफाइंग. वी विल ऑफ कोर्स क्वालिफाई बट या इट इज इंपॉर्टेंट. एवरी मैच बिकम्स इंपॉर्टेंट बिटवीन नाउ एंड यू नो टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड द ओलंपिक्स. बट व्हाट डू यू थिंक, अभी एशिया कप में जा रहे हैं, चांसेस क्या इंडिया के? Let's come to the side. सब young, except for Surya Kumar Yadav, it's a young side. Absolutely. I think the side that we are going with, it's very stable.
of all the sides, I think this ours is a very young and a fairly settled side. Right. And a tried and tested. I remember South Africa में जाके इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, at home अच्छा किया है. So And side is Surya Kumar Yadav captain, Okay. Shubman Gill vice captain, हाँ, that's a surprise. Abhishek Sharma, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Akshar Patel, Jitesh Sharma. Jitesh Sharma surprising है. नहीं तो- Why Jitesh Sharma has been included in the 2020 side? He's a backup for Sanju Samson, I think. Okay, Sanju Samson so they have to is- keep two keepers. Two keepers. Your favorite Jasprit Bumrah, Yeah. Arshdeep Singh, Varun Chakravarti, Kulcha, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana and Rinku Singh. Okay. तो क्वेश्चन ये आता है, who opens now? Jaiswal is not there, so I think Shubman Gill will open. I think With Abhishek Sharma, yes, left, वो right. लेफ्ट राइट का रखेंगे, लेफ्ट राइट का हमेशा रखेंगे. Because पहले वो जायसवाल के साथ ओपन जायसवाल करता के था. साथ, but just to tell you, जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल रिजर्व्स में. हाँ, बट वो आई थिंक वो रिजर्व भेज नहीं रहे हैं. वो तो बोला है कि इसी में हो जाएगा. 14-15 काफी हैं. 3-4 मैचेस तो खेल रहे हैं इनको. बट सो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच है 14 सितंबर को. यस. आपको क्या लगता है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे? नाउ लेट अस कम टू द रियलिटी. ऑनेस्टली ये T20 है. T20 सब देखते हैं. सो चाहे जितनी लोग गाली दे दें, तो वो उनके सेंटिमेंट इनको- कहाँ गया कि खून, नदी और खून एक साथ, पानी और ये सब एक साथ नहीं? भैया वो सेंटिमेंट प्रॉब्ली हम और आप शेयर करते हैं ज्यादा. हाँ. आई थिंक मेजोरिटी लोगों को ये है कि अब सरकार ने बोल दिया खेल लो, तो अब खेल लो. सो एज यू आर सेइंग, जो हम कहते हैं ना कि सब लोग इस सब चीजें भूल जाते हैं. वही है कि चेंज इज द ओनली परमानेंट एंड दैट्स व्हाई ये चेंज बहुत जल्दी हो जाता है आजकल की दुनिया में. I think we are always in a hurry to mend ties with Pakistan on all fronts. तो We are always in a या आपको लग रहा है हमें इंडियन टीम को बोला गया होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलो और उनको बुरी तरह आ रहा हो? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि BCCI ने क्यों नहीं एक स्टैंड ले लिया कि हम भेजेंगे नहीं, जाओ, बिफोर द गवर्नमेंट कुड स्टेप इन. वो सीधा बोलते रहते हैं गवर्नमेंट जो बोलेगा गवर्नमेंट. अरे भैया BCCI कौन चलाता है? BCCI को होम मिनिस्टर का बेटा चलाता नहीं, है. बट बीसीसीआई ने स्टैंड लिया तो कि आईसीसी में जाएंगे, आईसीसी टूर्नामेंट्स में. And other than ICC, but I think you made a very valid point कि ओलंपिक्स के लिए, रैंकिंग के लिए, I think it Yes, makes sense. yeah, I think It's a at the valid- back of the mind ये है. And plus देखो, अगर आप एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्लेयर का करियर भी कितना लंबा होता है. कितने एशिया कप वो बंदा खेलेगा T20 वाला, अगला एशिया कप 50 ओवर वाला होगा. ये T20 वाले प्लेयर्स खेलेंगे नहीं वो एशिया कप. नहीं, एंड आई थिंक ये टीम में भी हम जो देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव का भी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट्स. नहीं, सूर्य कुमार तो खेलेगा. सूर्य कुमार यादव Mid-30s की, में. सिद्धार्थ, उनकी परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली नहीं आ पा रही है. But he's leading the side very नहीं, well. फिर वही बात आ जाती है कि But- कैप्टेंसी वर्सेस इंडिविजुअल. लास्ट कपल ऑफ इनिंग्स में एक उसकी अच्छी इनिंग्स आई थी वैसे. अब 100 इनिंग्स दोगे तो मारेगा ही ना प्लेयर. नहीं तो अब सूर्य कुमार से No, tried but and why I am tested saying this T20 is player. why I am saying this is because शुभमन गिल को वाइस कैप्टन है. कहीं ऐसा तो नहीं शुभमन गिल को ये लोग ऑल फॉर्मेट कैप्टन देख रहे हैं? I think that think- is why it was a surprise for me कि But शुभमन गिल को it वाइस will कैप्टन be बनाया. determined by his performance also. Because If he doesn't ideally अगर आप perform- मुझसे पूछे, हार्दिक पांड्या should have been the vice captain. अगर सूर्य कुमार यादव But then को again, this was more a reward for the test series that they've given it. But टेस्ट के तो कोई और प्लेयर है ही नहीं, यही है बस. But then again, he also has 100 Except in the Mr. T20 Bumrah. format. He has 100 in, so he is a bona fide T20 player. Plus, गुजरात के लिए last two IPL में seasons में he's done very well. बहुत अच्छा करा है. I mean, final No, में but what पहुंचा I है. am trying to say to the viewers is शुभमन गिल को इसलिए लाए because after 2 years I see him being the all format captain across test, शुभमन ODI गिल and- ये हार्दिक पांड्या के साथ गुजरात टाइटंस में खेला था. हाँ, खेला था. So he's won the IPL also. Yes, हाँ, yes. तो IPL winner भी है भैया. IPL विनर भी. IPL winner भी है. तो अभी एशिया कप में हम लोग जा रहे हैं सिद्धार्थ, दुबई में हो रहा है. दुबई की पिचेस को देखते हुए क्या साइड सही है हमारी? आई थिंक वही चैंपियंस ट्रॉफी वाला अप्रोच रहेगा. वहाँ पे भी स्लो बॉलर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे और 2 फास्ट बॉलर्स आप लेके जाइएगा. क्योंकि जो तो- 3 स्पिनर हैं वो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड बापू नहीं साथ अक्षर पटेल. और आपके फास्ट बॉलर्स अपने 2 हैं आपके. हर्षित राणा, हर्षदीप है, हर्षित है हर्षदीप और है, जसप्रीत है. एंड बुमराह है. तो आई थिंक ये 3 स्पिनर तो खिलाएंगे और 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, 2 क्योंकि फास्ट बॉलर अक्षर पटेल प्लेज द रोल ऑफ ऑलराउंडर. ही प्लेज एज एन ऑलराउंडर. रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले ली है क्या 2020 से? वो T20 वर्ल्ड कप के बाद ही ले लिया So, था ना. Kohli, Sharma and Ravindra Jadeja. All three have retired from T20 format. And Ashwin has also retired from all the formats Yes. now. Right? Ashwin has also gone. These 3 are So also this gone. would be the first major cup where we will be playing without the OGs. Huh? Absolutely. All the young talent is coming up. I mean, dawn of a new era. But मुझे लगता है सिद्धार्थ, अफगानिस्तान as a team will challenge more than Pakistan.
हाँ बट अफगानिस्तान की भी साइड ना काफी अफगानिस्तान के कैप्टेंसी को भी बोलना चाहिए द बॉयज प्लेड वेल, बट अभी उनका जो टूर्नामेंट चल द रहा है बॉयज प्लेड वेल, वो सो ही खेल रहे हैं वो लोग भी। आई मीन उनको देखो एक एडवांटेज है, वो लोग अभी यूएई क्योंकि में जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स हुए हैं सेमीफाइनल तक आ रहे हैं अफगानिस्तान, टॉप 4 में आ रहे हैं। बट पाकिस्तान और इन सब को भी एक एडवांटेज है, वो लोग ट्रायंगुलर ऑलरेडी खेल रहे हैं यूएई में। बट आई थिंक दुबई पिचेस में पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड अच्छा है, नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम, मट्टी वहीं से आती है। नॉट टू टेक एनीथिंग। मुझे याद है एक टाइम में बोलते थे शारजा में तो वो लोग पाकिस्तान की होम सॉइल, बिकॉज शारजा का जो पिच का जो सॉइल है वो पाकिस्तान से आता है। So just to return back to the topic, कि मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ कि कोई भी टूर्नामेंट में, because there is a lot of sponsors, there is a lot of teams getting involved, there is a lot of money getting involved. I don't think future में और अभी भी ये जो है कि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं आएंगे, ये हो सकता है कि इंडिया में टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान के उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में हो, और अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो तो इंडिया बोले कि हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू। नहीं, एक्चुअली यही एग्री हुआ था। इनफैक्ट अभी इंडिया में विमेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें दैट्स बीइंग होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, तो जो उनकी जो विमेंस टीम है वो श्रीलंका में खेलेगी, श्रीलंका में खेलेगी। आई थिंक तो दैट इज एक तरह से इंडिया ने बोला वैसे ही ये जॉइंटली होस्टिंग इट, तो इट्स नॉट लाइक अ न्यूट्रल, उनके सारे मैचेस वही शेड्यूल कर दिए उन्होंने। बट हाँ, अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेंगे तो वो भी सारे मैचेस फिर इंडिया के बाहर हो जाएंगे। बट हाउ डू अगर उनकी यही फॉर्मेट रहेगा, जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स कि एक न्यूट्रल वेन्यू बनाएंगे, बट नॉन इंडिया और नॉन पाकिस्तान। हाँ, जैसे अगर जॉइंटली होस्टेड टूर्नामेंट्स होंगे तो जो सेकंड होस्ट होगा उस वहीं पे खेलेंगे जाके। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं सिद्धार्थ की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया इसलिए भी जीती क्योंकि वो पाकिस्तान की पिचेस पे नहीं खेली। पाकिस्तान की पिचेस पे खेलती तो इट वाज मोर ऑफ अ फ्लैट ट्रैक जहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मिलती, जबकि हमारी पूरी स्क्वाड स्पिन की हुई थी। हाँ, बट वो तो पाकिस्तान ने एग्री किया ना कि भैया आप वहाँ खेलो, बिकॉज दे वर सो डेस्परेट फॉर आवर मनी। इसीलिए आई मीन जितना रेवेन्यू एक इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो आपको मालूम है कि आईसीसी ने मैंडेट किया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा ना, वो ग्रुप स्टेज में खेलेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छा, नॉकआउट, नॉट जस्ट ये डिसीजन हो गया है। ये है, तभी आप देखोगे हर आईसीसी टूर्नामेंट होता है, बट अगर एक ही ग्रुप में इंडिया बट पाकिस्तान आईसीसी होता है। टूर्नामेंट अगर इंडिया में या पाकिस्तान में हुआ तो फिर वहां नहीं खेलेंगे, कोई एक और वेन्यू भी होगा। हाँ, दैट्स व्हाई हर आईसीसी टूर्नामेंट अब 2-3 वेन्यू में हो रहा है। हाँ, बट आई एम सेइंग कि ग्रुप स्टेज में हाँ, वो इंडिया और पाकिस्तान, ताकि वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस हो जाएं राइट टूर्नामेंट में, राइट, एक नॉकआउट स्टेज पे और एक ग्रुप स्टेज पे। तो आप हांगकांग का कैसा देखते हैं? एशिया कप में हांगकांग भी इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, तो क्या इंडिया को हांगकांग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए? जस्ट अनदर पर्सपेक्टिव कमिंग। अब तो गले मिल लिए जाके, हम तो क्या बात कर रहे हो भाई। कल तो की फोटो बहुत अच्छी थी, कल तियानजिन मोदी बीच में गले मिल लिए, और मोदी जी वाज द रिंग लीडर, वही सबसे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, तालियां मार रहे थे। तो अब तो चाइना से खेल सकते हैं, चाइना गुड बॉय हो गया हमारे बुक्स में वापस, जब तक बैड बॉय फिर नहीं हो जाता। नहीं तो so just to tell our viewers कि I think what we are trying to say is कि आने वाले मैचेस और आने वाले टूर्नामेंट्स इंडिया पाकिस्तान के होंगे, बट एक न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाट वी विल सी। आप भी देखेंगे एशिया कप, 2020 वर्ल्ड कप। न्यूट्रल वेन्यू पे तब होंगे अगर हम होस्ट कर रहे होंगे तो नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉफी वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान। हाँ, बट अगर जैसे अगला वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया में है तब तो वैसे ही वो न्यूट्रल है। हाँ, अगर हम होस्ट अगर पाकिस्तान या इंडिया, हाँ, अगर इन दोनों में से कोई होस्ट होता है तब उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। और न्यूट्रल वेन्यू के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा पिच दुबई को ही करा जा रहा है। आई थिंक दुबई या श्रीलंका, यही दो। बट दुबई को क्यों पिच कर रहे हैं इतना? मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में। आई थिंक मोर वेदर कंडीशन से, जैसे इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए श्रीलंका भी कंटेंडर था बाय द वे, और साउथ अफ्रीका भी कंटेंडर था बाय द वे। बट एक्चुअली अगर आपको याद है जो एशिया कप पे पाकिस्तान में हुआ था, इंडिया के मैचेस सारे श्रीलंका में हुए थे, ठीक है? तो पाकिस्तान से श्रीलंका आना बहुत लंबी फ्लाइट हो जाती है, और जबकि पाकिस्तान से दुबई जाना इज लाइक 1.5 घंटे। So it's more of logistics. It's more about logistics also. Logistics convenience and everything. But okay, so we are coming towards the end of the. But एक बात तो है कि इंडिया की काफी फेवरेटिज्म होती है। जैसे यूएस भी गए थे तो हमारे सारे मैचेस न्यूयॉर्क में हुए थे, बाकी सब न्यूयॉर्क, टेक्सास, न्यूयॉर्क सब फ्लाइटों में थे, हम खाली। और फिर हमारा एक सेमीफाइनल वो कहाँ, बर्म्यूडा या कौन से बारबेडोस में हुआ था। क्यों? बिकॉज टेलीविजन के, तो ये वो पहले से सेट था
देखो कि इंडिया ग्रुप में कहाँ भी जो फिनिश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उसको थोड़ा तो एडवांटेज ये तो थोड़ा advantage ओपन मिलना चाहिए। फेवरेटिज्म हो रहा था। तभी तो इंडिया जीता। हाँ, वो भी कह सकते हो, पर फाइनल तो खैर वो न्यूट्रल वेन्यू पे ही था, नॉट अ प्री डिटरमाइंड वेन्यू। बट जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स की अभी कौन कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। अभी एशिया कप के बाद इंडिया टूर टू साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका टूर टू इंडिया है। नहीं, आई थिंक इंडिया ओडीआई टूर टू ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक। नहीं, उससे पहले आई थिंक एक वेस्ट इंडीज का टूर भी आ रहा है टेस्ट में। नहीं, आई थिंक अक्टूबर में हाँ। अभी हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सबसे पहले। अच्छा, अभी कोई नहीं है सितंबर में। आई थिंक वहाँ पे 3 या 4 या 5 मैच ओडीआईज हैं जो हमारे रोको खेल रहे हैं कि नहीं, रोको या उन्हीं को रोक दिया जाएगा। हमारे 2 अनमोल रतन आ सकते हैं, क्या पता। या उन्हीं को रोक दिया जाएगा। नहीं, उनको आना चाहिए, जो उनका रिकॉर्ड है उन लोगों को बोलना चाहिए भैया इस पे आके प्रूव करो। अभी कल रोहित शर्मा ने वो कौन सा नया यो-यो टेस्ट, नहीं, जो भी नया टेस्ट नाम चेंज यो-यो हो गया ना। टेस्ट नहीं, योयो अच्छा। टेस्ट का नाम चेंज हो गया ना। Okay। ये कोई नया टेस्ट आ उसमें गया है। 19.4 किया हाँ, है। तो क्लियर कर लिया Clear कर उन्होंने, लिया है। तो दैट्स अ गुड थिंग। जिस तरह से नहीं, देखिए अगर आप धोनी से कराएंगे तो धोनी भी क्लियर कर लेगा सिद्धार्थ। ये तो क्लियर करने की बात नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतने लंबे मैच बिना खेले और फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, दे शुड आइडली पे सम काइंड ऑफ टूर्नामेंट। विजय हजारे नहीं तो विजय हजारे खेले हैं या कोई और किसी बट अभी है नहीं। अभी आई थिंक आपका तो दिलीप ट्रॉफी भी चल रहा है। हाँ। अभी इनफैक्ट दिलीप ट्रॉफी फाइनल भी वो लाइव इस बार टीवी पे आएगा। दिलीप ट्रॉफी खत्म होगा तब ये उसके बाद आई थिंक, आई डोंट नो वेदर यू स्टिल हैव एन ईरानी ट्रॉफी और नॉट। यस, एक ईरानी ट्रॉफी होता बुची था। बाबू ट्रॉफी है जिसमें पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छा मारा है। हाँ, 2-3 गेम हाँ। में ही हैज हिट बैक टू बैक सेंचुरीज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतना लंबा ब्रेक के बाद कैन यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया? बट आई थिंक जो हमारा डोमेस्टिक वनडे कंपटीशन है वो थोड़ा बाद में शुरू होता है। फेस्टिवल टाइम में तो होता भी नहीं है, आई थिंक उसके Right। बाद होता है। बट यू नेवर नो, 2020 नहीं खेल रहे, टेस्ट भी नहीं खेला, उससे क्या होता है? ओडीआई भी नहीं ये खेला। लोग प्रोफेशनल्स हैं at the end of नहीं, the बट day। स्टिल यू हैव टू बी इन द रिदम सिद्धार्थ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में द देखो, पिचेस आर फास्ट। ऑस्ट्रेलिया तो कोई भी जाएगा उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि वापस बीजीटी से। में हम लोग हार के आ रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट। हाँ, that's हम true. इंडिया में बीजीटी Absolutely. लास्ट इंडिया टू Absolutely. ऑस्ट्रेलिया में हार। But draw inspiration from the fact that South Africa beat them just now in Australia. साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा तो परफॉर्मेंस करा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भी कोई बहुत ही माशाल्लाह टीम तैयार नहीं बैठी है, वो भी उनकी डेवलप ही हो रही है। दे आर ट्राइंग न्यू बॉलर्स, बैट्समैन। जब भी मैं उनके आजकल स्कोर कार्ड देखता हूँ तो नए नए नाम मैं भी पढ़ता हूँ। अंडर 19 स्क्वाड Under 19 से वो आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जो उनका SL20 है जो आईपीएल के हैं उसमें से Yes, काफी अच्छे लोग आ रहे yes, हैं। yes. तो साउथ अफ्रीका भी आई थिंक उन्होंने वर्ल्ड कप लेजेंड्स भी जीता है, वर्ल्ड Yes. WTC चैंपियनशिप भी जीता है। तो आई थिंक जो चोकर्स का टैग था फाइनली साउथ अफ्रीका इज एबल टू डिफीट इट। वो एंड फुल क्रेडिट टू देम द वे दे वन द वर्ल्ड WTC. टेस्ट चैंपियनशिप बहुत अच्छा खेला, फाइनल। बहुत आई मीन अच्छा। दे केम फ्रॉम बिहाइंड टू विन। एंड विद अ कैप्टन लाइक टेंडर बबूमा। हाँ, उसको आप कुछ भी Absolutely. कह लीजिए, गुलिवर ट्रैवल कह लीजिए, छोटू उस्ताद कह लीजिए, बट उसका माइंड इज पर्ची प्लेयर कह लीजिए उसको, बट परफॉर्म करता है वो बंदा, अच्छा करता है। सो इंडिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में हो रहा है एंड देन उसके बाद आई थिंक साउथ अफ्रीका इज आल्सो कमिंग टू उसके इंडिया। बाद आई थिंक the वेस्ट ODIs. इंडीज को होस्ट करेंगे। and then And I think South South Africa might come for the ODIs or ODIs, whatever. इतना मुझे क्लैरिटी नहीं है। बट आप देखते हैं 2027 वर्ल्ड कप में रोको को देखते हैं? दिल तो बोलता है कि देखना चाहिए उनको, मुझे नहीं लगता, बट 2 साल बहुत मुझे लंबा नहीं अरसा लगता होता है। सिद्धार्थ, मुझे नहीं लगता। और जिस तरह से एटलीस्ट मैं कोहली के अगर बारे में धोनी जिस ने तरह भी से वो कॉल नहीं ली होती कि द्राविड सचिन को नहीं लिया होता 2000, इनफैक्ट द्राविड गांगुली इन सबको 2011 वर्ल्ड कप में, आई थिंक टफ कॉल्स वी विल आल्सो टेक। हो सकता है कोहली को तब भी खिला लें, सीइंग हिज फिटनेस। अगर ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं अभी, हाँ, आई थिंक उनके वो फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि हाउ दे कम बैक फ्रॉम दैट टूर। ऑस्ट्रेलिया में अगर नहीं परफॉर्म करा तो Then I think they'll be short. They'll be short. And people like Kohli, तो I know they'll walk away also. हाँ, वो अभी भी आप देखिए वो ऑलरेडी देखा है कि यार सब तो छोड़ ही दिया, अब ये क्या फॉर्मेट बचा है मेरे लिए। आई थिंक उनके बस जहन में वो है कि यही एक टूर्नामेंट है जो रोहित शर्मा ने नहीं जीता है, जो डेस्परेट है जीतने के लिए। टेस्ट तो जीत नहीं सकते। बट आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बल्ला बंदूक एक साथ चले या ना चले, एशिया कप में हमें खेलना चाहिए कि या नहीं करें? खेलना चाहिए, और अगर एशिया कप में खेलना चाहिए तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल, वॉक ओवर दे दे। बिल्कुल। सो सिद्धार्थ, हाउ वाज द टुडे पॉडकास्ट? वेरी नाइस, इट वाज नाइस रिफ्रेशर। काफी टॉपिक्स थे एक्चुअली Yes, डिस्कस करने के लिए जो हमने, एंड थोड़ा लंबा भी हो गया, बट इतना तो But I think we are on time, हाँ, and it's absolutely we fine will and- keep bringing you some new content always.
and but this was very close to our heart because being a part of a country like India, Yes. where we have always taken prestige in our army, in our defense forces. If you will, any idea how our defense forces reacting to this? That whether India should go to play? I think now the कोई government आपके has defense said, forces में- government ने बोल दिया है कि it is okay. Okay. अभी defense forces में मेरे हैं, पर मैंने उनसे कभी ये पूछा नहीं. But now they How always जनरल toe the बख्शी line. जनरल बख्शी कैसे कर रहे हैं इस पे रिएक्ट? जनरल बख्शी तो कह रहे हैं जाओ और पाकिस्तानियों को हराओ. देखो, आप जाएं एंड एक डिग्निटी के साथ खेलें. उनके लेवल पे हमें अगर वो छीछा लेकर कर रहे हैं, And तो just हमें to उनके tell our जैसा viewers, नहीं Babar and Fakhar Zaman are not in the team. हाँ, तो वो लोग भी तो वो कह रहे हैं कि वो दोनों ही नहीं है. जब कोहली और रोहित इंडिया के लिए नहीं खेल सकते, तुम किस खेत तुम की क्यों मूली खेल- हो? हाँ. So Pakistan will also be a young team, but you know Pakistan can either be a great loser or a पाकिस्तान surprise winner. पाकिस्तान Anyway. इज अ मीटियोरिक टीम. But I will always वो आपको इस टूर्नामेंट में डोंट बी सरप्राइज अगर हमें हरा दे और वो फिर ओमान से हार ओमान से हार जाए, हाँ, राइट. कुछ भी तो वही मैंने कहा, they can either be a great loser or a surprise winner. Yes. They cannot be a great winner, especially after the Waqar, Yunus, Oh yes. and that Yes, I era think has left away. ये उनका अभी जो वेस्ट इंडीज का ईरा जो चल रहा है ना पिछले 25-30 साल से, वो जो ग्रेट्स के बाद after the Walsh मेरे को लग रहा है कि and पाकिस्तान धीरे-धीरे उसी में जा रहा है. उसी में From जा रहा है. becoming a top level team to a second run team. Right, and I won't be surprised कि even Hong Kong अच्छी परफॉर्मेंस दे दे या ओमान अच्छी परफॉर्मेंस दे दे. You never know because now you see सिद्धार्थ, जितनी भी कंट्रीज ये जो नई कंट्रीज आ रही हैं उसमें आधी साइड तो एशियंस ही हैं. हाँ, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, एशियंस ही हैं उनकी आधी साइड. बिल्कुल. एंड ये सब अच्छा कर रहे हैं. यूएसए ने कितना अच्छा परफॉर्म किया बहुत अच्छा perform T20 वर्ल्ड कप. They defeated Pakistan. एग्जैक्टली. उनका टाई हुआ था and then super over में they won. वो सुपर नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए थे. हाँ. पाकिस्तान could not go to the next stage. Yes, yes. India and USA went to the पाकिस्तान next भी हार stage. गए थे. So I think it's So anything is possible. okay. So keep supporting us, keep liking us. Please like, share, subscribe, and let's see. We are pitching India for the Asia Cup, and let's Yes, see I think we should win who it. won the last Asia Cup. Sri Lanka. We did. अच्छा, The 50 over format जो जिसमें फाइनल में 50 ऑल आउट किया था मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को. Yes, yes. हाँ. Within 50-60. I think सिराज की अच्छी परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ बहुत आई है. वर्ल्ड कप में वर्ल्ड भी कप में 50 ऑल आउट किया था. ऑल आउट किया था. तो सिराज हमारा डीएसपी नहीं छोड़ेगा, and we all are praying हाँ, for. तो अभी डीएसपी नहीं खेल रहा But है. DSP है ही नहीं टीम में. हाँ, डीएसपी है ही नहीं टीम. तो बुमराह है. So we are cheering for Bumrah and Arshdeep, but Arshdeep ने भी बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं कराई. But let's see how the Asia Cup goes. ब्लॉगिंग बहुत कर रहे हैं लेकिन आजकल अर्शदीप. So please like, share, subscribe, comments करिए, share करिए. And Yes. just to tell, हमारा दादा का episode has been one of the top trending in Spotify. अरे. And उस पे हमारी मूवी, हम लोगों ने जैसे बोला था कि उस पे मूवी बनाई है, तो राजकुमार राव is हाँ, playing the बिल्कुल, role of दादा. exactly, yes. I think हमारा पॉडकास्ट वहाँ तक पहुंचा है, गांगुली हाँ. तक पहुंचा है या राजकुमार राव तक पहुंचा True, है, या किसी प्रोड्यूसर के पास पहुंचा है. Oh, well deserved. I And think well it'll deserved. be a good movie. It will be a good movie, and he's actually staying in Calcutta in Dada's house or Okay. nearby to just get into the character. Just like Sushant Singh Sushant Singh did for stayed with Dhoni. Dhoni. And being a country loved country, मतलब cricket loving country, it would be another super hit. Because Absolutely. उसकी journey जैसे हम लोग ने भी It will बताई be a थी, super hit in Bengal for sure. नहीं, and journey itself was a very very inspiring journey. सिद्धार्थ, तो ऐसी journey तो चाहे भाग मिल्खा भाग See, की देखो, हो, चाहे MS धोनी हमारी की हो. हिस्ट्री में हम कपिल देव को ऑलवेज रिगार्ड करते हैं एज द ग्रेट कैप्टन. पर जब कपिल देव से पूछा गया था, he regarded Saurav 2011, Ganguly he was as crying. he was crying, Yeah, he was and he crying said in the कि all credit studio goes to Dada. Saurav Ganguly To Dada. and when we won the World Cup in 2011. So okay, nice podcast, and Do let us know what is the next topic that you would want us to talk about. Talk about. Obviously cricket related. We would love to hear from you. And till next time, I guess we'll be soon. We'll be back soon. we'll be back soon. Keep watching. Take care. Goodbye. Bye bye. अब नहीं होता यार. हाँ यार, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 30 साल हो गए यार, अब छोड़ देना चाहिए. लेकिन हमारी जगह लेगा कौन? अरे यार, वो है ना, वो नहीं, वो दूसरा वाला है ना. उसमें एक बात है. नहीं यार, वो नहीं, कोई बात नहीं है उसमें. कोई बात नहीं.
हमें ही करना पड़ेगा भाई। देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। चल, लेट्स गो। हाथ दे यार। उठा 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 उठा। लोअर बैक ना।